بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم تاریخ اسلام سن 632 سے 1923 تک کو قسطوں میں بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 11 نمبر کی قسط ہے۔ تو دوستو، خانہ جنگیوں کی وجہ سے اسلامی افواج کی کامرانیوں کی دھماکہ خیز رفتار رک سی گئی تھی۔ جب یہ خانہ جنگیاں تھم گئیں تو یہ رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ تعالیٰ نے برصغیر کے مغربی علاقوں یعنی جدید پاکستان کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سعد بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وسط ایشیا میں بخارا اور سمرقند پر نصرت کے گھنٹے گاڑ دیے تھے۔ عقبہ بن نفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردی میں اسلامی افواج شمالی افریقہ کو رونقتی ہوئی بر اعظم کے دوسرے کنارے سے ٹکرانے والے بیرا اقناس تک پہنچ گئی۔ یہی وہ مشہور فاتح جنرل ہیں جنہوں نے فتح کے قدم رک جانے سے جھنجھلا کر سمندر میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا تھا۔ پھر راہ نہ پا کر واپس ہوئے اور کہا، یا اللہ، اگر یہ سمندر راہ میں حائل نہ ہوتا تو میں زمین کے آخری ہاتھ تک فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا، صرف اور صرف اس لیے کہ ہر طرف تیرا ہی نام بلند ہوتا۔ یہ الفاظ اس دور کے مسلمانوں کے جوش امانی کا ایک مکمل اظہار حال ہے، جس سے سرشار ہو کر انہوں نے کامرانی اور نصرت کے علم سر بلند کیے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس سے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود تھی۔ وہی جذبہ، وہی ایمانی قوت اسلامی افواج کو سبق رفتاری عطا کرتی رہی، فتح مندیاں بخشتی رہی۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، لیکن اسے صرف اسی خالق کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ قرون اولا کے مسلمانوں نے جو جد کی تھی، اس کا ایک ہی مقصد تھا، دنیا میں ایک صالح نظام قائم کرنا جہاں لوگ صرف خدائے بزرگوں برتر کی حمد گائیں، غیر اللہ، جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے ظالموں کی غلامی سے انسانیت کو آزاد کرانا۔ ان کا عین مقصد یاد تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یادگار کارنامہ ہے طاقتور بیڑی بیڑے کا قیام تاکہ مشرقی بیرا روم پر بازنطینی افواج کی شکنجہ کو ختم کیا جا سکے۔ یہ بیڑی بیڑا جب تیار ہو گیا تو حضرت جندب بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الجہر مقرر کیا گیا۔ ایڈمرل کا انگریزی لفظ اسی امیر الجہر سے ماخوذ ہے۔ سن 671 میں روڈس اور دوسرے جزائر پر اسلامی بحری افواج نے قبضہ کر لیا۔ بازنطینی شہنشاہیت کے صدر مقام قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ بازنطینی دفاع کافی مضبوط تھا۔ یونانی کیمیائی ہتھیار نفاتا، یونانی آگ میں باہر ماہر تھے۔ یہ نفاتا موجودہ دور کا ناپام بم بنا محاصرہ طویل پکڑتا گیا۔ اسلامی بحری بیڑے میں دست کی وبا پھیل گئی۔ مسلمانوں کو یہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی محاصرہ میں کے دوران صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ قسطنطنیہ کے قلعے سے قریبی پل کے پاس انہیں دفنایا گیا۔ ترکی کے جدید استنبول شہر کے اندر واقع حضرت ابو ایوب انصاری کا عظیم الشان مقبرہ اسی خوبصورت شہر کی اہم ترین یادگاروں میں سے ایک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر ایک سپاہی تھے۔ انہوں نے افواج کی طرف خصوصی توجہ متوجہ کرائی۔ انہوں نے فوجی ٹیکنالوجی کے بارے میں تحقیقات اور ایجادات کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں ہی مسلمانوں نے منجنیقیں ایجاد کی، جس کے ذریعے دشمن کے قلعوں پر بھاری پتھروں کی برسات کی جاتی تھی۔ انہوں نے افواج کی تجدید کاری کی، خصوصی صحرائی دستے قائم کیے، برفانی راستوں پر حملے کرنے کے لیے خصوصی فوج ترتیب دی، نئے قلعے تعمیر کروائے۔ حضرت معاویہ اولین مسلمان امیر ہیں جنہوں نے عربی نقش کے ساتھ سب سے پہلے سکہ ڈالا اور اسے رائج کیا، بازنطینی اور فارسی سکہ کا چلن کا خاتمہ کیا۔ اس طرح اسلامی حکومت کی بالادستی کا جھنڈا بلند کیا۔
मगरब में करोने शहर के बुनियाद रखी। निज़ाम हुकूमत की दस्तावेजी फिल्म बंदी कलम बंदी के इस रिकॉर्ड के बाकायदा असूल मरतब किए। पुरानी नहरों की फिर से खुदाई की गई, नई नहरें तामीर की गई, शुरता यानी पुलिस फोर्स को मजबूत किया गया। डाक का निज़ाम जिसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फौज के लिए राइज किया था, इसे पहली बार अवाम के लिए राइज किया गया। हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सौबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा आप रज़ी अल्लाह तआला से कातिबे कुरान की खिदमत भी ली थी। इस हैसियत से तमाम मुसलमान इनकी बेइंतहा इज्जत करते हैं। तारीख में इनके रोल के मुतल्लिक इख्तलाफात तो नजर आते हैं, लेकिन इनके कारनामे यकीनन काबिल लिहाज है। ये एक ऐसे अमीर की हैसियत से भी मशहूर है जिनके दौर में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बरसरे आम और इश्नाम तराजी होती रही और ये इसे नजरअंदाज करते रहे। इस रिवायत को 50 साल बाद सन 719 में खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में खत्म किया गया। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हजरत मुआविया ने अपने जालिम बेटे यजीद को इस्लामी तारीख पर जबरदस्ती बिठाया। तो दोस्तों, इसके लिए हमें पीछे जाना होगा जहां से ये तारीख शुरू होती है। मुसलमानों की तहजीब व तमद्दन, ज़बान, शायरी पर जिस कदर असर करबला की साना ने डाला है, शायद ही तारीख की किसी और वाक़या ने इतना असर छोड़ा हो। उर्दू और सवाली ज़बानें जो इस अलमनाक साना की 1000 साल बाद पैदा हुई, इन ज़मानों में भी इसका तज़किरा यूं होता है कि जैसे मौजूदा अवाम ने खुद अपनी आंखों से इसे देखा हो। करबला से बहुत दूरी पर वाक़या कोलनपुर के सड़कों पर काम करने वाला मजदूर भी बिला वास्ता तौर पर ही इन वाक़यात के बारे में इसी शिद्दत गम का इज़हार करता है जितना कि लाहौर का इकबाल या शिकागो का कोई प्रोफेसर करबला क्या वक्त वही फेल है, वही फाल है और वही मफूल है। असल बात तो यह है कि करबला इस्लामी तारीख में कुर्बानी और शहादत का एक आला तरीन पैमाना है, एक मरकजी महवर है जिसके चारों तरफ मुसलमानों के अपनी दाखिली बहस मुआबासे और मुनाजरे घूमते हैं। तारीखी हैसियत से करबला का साना दौरे हकीकत की आखिरी हिचकी है। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत का मसला आपसी मशवरे से तय होता था। खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी आखिरी वसीयत के जरिए 6 जदीद सहाबा कराम की मजलिस से मशावरत नामजद की थी ताकि इनकी जानशीन का इंतखाब किया जा सके। इन सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खानदानी बादशाहत के खतरात को अच्छी तरह एहसास था और वो ये भी जानते थे राय और मशवरा से तय पाने वाली खिलाफत ही बेहतरीन हुकूमत दे सकती है। इनका वो जमाना अकीदत का जमाना था। चारों खुलफाए राशिदीन ने एक साला समाज की जिद्दोजहद की थी जिसकी में हलाल की बालादरी और हराम से इज्तनाब हो, अल्लाह की जात पर ईमान हो। इस जिद्दोजहद के दौरान उन्होंने इस बात का इंतहाई ख्याल रखा कि इनके आला मनसब से अपने खानदान को कोई फर्द नजायज फायदा ना उठा सके। तो दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सफियान ने इस तर्ज अमल को बदल डाला। मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर उन्होंने अपने बड़े बेटे यजीद को निजानशीन मुकर्रर कर दिया। यह फैसला भी तारीख के इक़्तिदार को नापने का एक पैमाना है। सलाह मशवरा से जो हुकूमत कायम होती है वो अवाम को जवाबदेह होती है। बज़ोरे ताकत जो बादशाह बन जाते हैं वो किसी को जवाबदेह नहीं होते। यजीद की जानशीनी ने इस्लाम के इस बुनियादी जवाबदेही या जमहूरियत के तस्वर को बर्बाद कर दिया। इस तरह हजरत अमीर मुआविया के बाद मुसलमानों की तारीख में एक ऐसे दौर का आगाज हो गया जिसके तहत आगे चलकर या तो शहनशाह पैदा हुए या सलातीन, जिनमें कुछ अच्छे थे, बकिया जाबर और मुतलक अल नहान बादशाह थे। कुछ बादशाहों ने अपने आप को खुद खलीफा होने का ऐलान किया और चंद एक नए खिलाफत के तस्वर के साथ खलवाड़ किया। अपनी बेटियों की शादियां इंतहाई शान शौकत के साथ करते रहे, इन्हें तोहफ के तौर पर खजाने बख्शते रहे। इन तमाम की हुकूमत सपा
आशियाना तर्ज की थी, वो हुकूमत जो तौहीद के अल्लाह तरीन तसव्वुर के साथ कायम थी, इसके साथ अवामी जवाबदेही का जो सिलसिला जारी था, वो सिलसिला तो हजरत अली करमुल्लाह वजह की शहादत के साथ खत्म हो गया। हजरत अली और हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला के ज़ेर खिलाफत जो इलाके थे, उन पर अपने इक़्तिदार अल्लाह को कायम करने में हजरत अमीर मुआविया ने देर नहीं की। यजीद ने अपनी पुलिस फोर्स का शिकंजा अराकियों पर इंतहाई बेदर्दी से कस दिया, जिसकी वजह से अराकियों के सामने यजीद के आगे सर झुकाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, सूबा हज्जाज जो कि जदीद सऊदी अरब में शामिल है और जिसके तहत मक्का और मदीना आते हैं, इसकी हालत बिल्कुल अलग थी। हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जैसी जीत और मानी हुई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने खानदानी हुकूमत की मुखालफत की, इसलिए कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ थी और खुलफाए राशिदीन ने जो मिसाल छोड़ी इसके बरअक्स थी। इन हैसियत शख्सियतों को मुतमिन करने के लिए खुद हजरत अमीर मुआविया ने मदीना मुनव्वरा का सफर किया। इनके दरमियान ख्यालात का तबादला भी हुआ, लेकिन इनके ज़हनों और ख्यालात के दरमियान दूरी बाकी रही। इस इजलास में होने वाली गुफ्तगू के बरखिलाफ बहर आके हजरत अमीर मुआविया ने ये ऐलान कर दिया कि पांचों शख्सियतें यजीद के हाथ बैत करने के लिए तैयार हैं। तराबी इब्ने असीर के मुताबिक हजरत अमीर मुआविया के उमरा ने धमकी भी दी कि बैत करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इस धमकी से खौफ खाकर अवाम ने इनकी बात मान ली। इसके बाद आगे चलकर पता चला कि इन पांचों मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने बैत के लिए हाँ नहीं की थी, इनके बारे में सिर्फ अफवाह उड़ाई गई थी। इसके फौरन बाद सन 692 में हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और इस वक्त इनकी उम्र 78 साल थी। यजीद बनु उमैया के तख्त पर बैठ गया। यजीद ने जो अव्वलीन अहकाम जारी किए, इसके तहत मदीना के गवर्नर वलीद उतबा का ये हुक्म दिया कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को ये एहसास हो गया कि इनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने रात के अंधेरे में मदीना को खैरबाद किया और सीधे मक्का पहुंचे और काबतुल्लाह में पनाह गज़ीन हो गए। इनका ख्याल था कि यहाँ वो यजीद की फौज से महफूज है। हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सौतेले भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से मशवरा किया और वो भी मक्का की जानब चल पड़े। वो सहाबा रसूल और मुसलमान जो ये समझते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद इनकी जानशीनी का हक सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को है, वो शियाने अली कहलाए, यानी हजरत अली के चाहने वाले। यही शिया लफ्ज का माखज़ है। तारीख शायद है कि सुन्नी का इस्तेमाल बाद में शुरू हुआ। इब्ने कसीर और इब्ने खल्दून के मुताबिक ये सहाबा कराम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के खलीफा नामजद किए जाने पर मुतमिन नहीं थे, लेकिन उम्मत के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर और हजरत उस्मान का साथ दिया और इनके मुतहद काम भी किया। जब हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया के हक में खिलाफत से दस्तदार हो गए, तो शयाने अली कहलाने वाले अक्सर अफराद सियासत से किनारा कश हो गए। उन्होंने एक ऐसे सियासी निज़ाम से खामोश से समझौता कर लिया जो हमेशा इनके लिए मुखालफाना और मुआदाना न रहा। उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनकी आल की रूहानी खिलाफत को तस्लीम कर लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का दारुल कूफा था, वहाँ शियाने अली का काफी तादाद थी। हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला को कूफा की सरकर्दी हस्तियों की जानिब से बेशुमार खतूत आने लगे। इन्हें बाअसरा इराक आने की दावत दी गई और अहले कूफा की तरफ से इनके खिलाफत के लिए बैत कबूल करने पर बार बार इसरार किया गया। इब्तदाई कदम के तौर पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि हकीकत का पता लग सके। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुंचे
اور اپنے چاہنے والے حضرت ہانی کے گھر قیام کیا۔ یہاں حضرت حسین کے چاہنے والوں کا تانتا لگ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے چلے آنے کا پیغام بھیجا۔ تو دوستو اس کا کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔